Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you second year. How are you? May Allah Ta'ala keep you in His protection. Hope so you all are fine. Dear students, we are now going to complete our exercise 2.1 as we have discussed different parts of question number 1 by first principle and or by definition method, and I have explained question number 1 different parts can be solved by different techniques. For example, few parts of question number 1 are just positive integral power of variable has just positive power, while in many parts of question number 1 higher positive integral power, while in different part there is negative or non-integral power of variable. So according to the situation we have solved different parts of question by using suitable techniques. So today we will complete our exercise by discussing second part of question number, by discussing second question of exercise 2.1. okay, and today we will inshallah wind up our exercise 2.1. Now look the parts of question number 1. This is first part. In first part there is just positive integral power of variable 2 x raised to power 2 minus under root x. This is non-integral part x raised to power 1 by 2, and this is 1 over under root x. It means it is x raised to power minus 1 by 2. It is negative integral power of variable x raised to power minus 3. This is also negative power of variable, and 1 over x minus a, so it can be written as x minus a whole power minus 1. This is the case also negative power of the variable, and simply we have discussed this one. This is just like question number 1. And 2 over x raised to power 4. In this part x raised to power 2 into x raised to power minus 4. This is also type of negative integral power of variable. While in next part x raised to power 1 by 4. In this part you can see here this is non-integral part. Power is a complete integer 1 by 3, and same case is here, and same case in question number in next question x raised to power 5 by 2, and in 11th part x raised to power m. So m may be any integer, maybe 40, 80, 70. So it means we will deal it as higher integral power of variable, and 1 over x raised to power m, this is higher power, but this is also x raised to power minus m. This is negative integral power of variable. Okay, x raised to power 40. So today we will solve x raised to power 40 and x raised to power minus 100. These are higher powers as well as negative. So I have teach you all techniques to deal such type of questions, and so today we will also discuss question number 2. Find derivative from first principle, same condition, x plus 2 whole power 1 by 2. So it means in this case we will there is no any change method. We can deal this question by previous method. So it can be written as x plus 2 whole power 1 by 2, and same case is here x plus a whole power minus 1 by 2. Okay. So dear students, I will give you just hint to solve question number 2. As question number 2 first part is find derivative from first principle, given function is and square root x plus 2. What's the first step to calculate derivative? Write y is equal to square root x plus 2. फर्स्ट स्टेप में इस तरह करते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या है, डेल्टा वाई जो डिफरेंस है यहाँ पे डेल्टा का फंक्शन दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं. y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x. एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ये जो डेल्टा x है जो आप चेंज ऐड कर रहे हैं बोथ साइड्स पर, y का फंक्शन है, y यहाँ पर y प्लस डेल्टा वाई एज अ वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड पर आप जाएंगे तो आपने जस्ट x के अंदर ही इस डेल्टा x को ऐड करना है. पूरी टर्म 2 के साथ नहीं कर देना वरना ये गलत हो जाएगा. ओके, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 2 होल पावर 1 by 2. Right? Now in next step
change the side of y, delta y is equal to x plus delta x plus 2 1/2 minus y. As we have done in previous question, previous parts, ये सेम हम इसी तरह करते आए हैं जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए. अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 को आप यहाँ इकट्ठा राइट कर दें, प्लस डेल्टा x और होल पावर में 1/2 एज इट इज रहने दें, माइनस नाउ पुट इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y. आपने अब क्या करना है, इसमें से x प्लस 2 1/2 को कॉमन लेना है. कॉमन लेने के बाद आपने सेम उसी मेथड से करना है जिस मेथड से हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था. अगर आपको याद हो, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट आफ्टर पुटिंग y plus delta y is equal to this one, and after inserting value of y we have taken common x minus a होल पावर -1. जिस मेथड से हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इस मेथड को फॉलो करते हुए आपने उन्हें सॉल्व करना है. और अगर आपको समझ ना आए तो आप लास्ट लेक्चर जो है उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसको समझें, आप ये इजीली सॉल्व करेंगे. हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2 पार्ट्स हैं, इनको जस्ट मैं इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपकी ये रिवीजन हो जाए. फर्स्ट पार्ट इज़ 2x² + 1. फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ रिवाइज, नाउ रिपीट दी स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप पुट द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू y. सो y इज इक्वल टू 2x² + 1 एंड आफ्टर दैट add delta function on both sides. Y plus delta y is equal to, there is variable x, so in x add delta y, 2x plus delta x whole square plus 1. Delta y as it is, you have changed the side of y, so 2x plus delta x whole square plus 1 minus y. Now insert the value of y that is given in the function, minus 2x square plus 1, 2x plus delta x whole square plus 1 minus, when you have opened the bracket, minus plus becomes minus 2x square minus 1. So it can be written as 2x square plus delta x square open square x square plus delta x square plus 2x delta x plus 1 minus 2x square minus 1. आपने ये 2 को साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इससे मिस्टेक के चांस हो सकते थे. अब आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें. नाउ मल्टीप्लाइंग 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 2 डेल्टा x², 2 2 = 4 प्लस 4x डेल्टा x. यहाँ तक ही मल्टीप्लाई होना था क्योंकि 2 सिर्फ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इनके साथ इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. राइट, चलें जी आगे चलते हैं. 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 4x, 2 2 = 4 प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कटिंग हो गई, कैंसिल आउट. 2x² माइनस 2x² कैंसिलेशन, एंड व्हाट लेफ्ट बिहाइंड, पीछे हमारे पास रहता है जस्ट 2 डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x. ठीक है जी. कैंसिलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x. सो दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड हियर डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x और डेल्टा x. ये डेल्टा x कहाँ से आ गया यहाँ पर, यू कैन सी हियर देयर इज डेल्टा x एंड डेल्टा x वी हैव टेकन कॉमन लिया है हमने यहाँ पर. कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 थे डेल्टा x, तो एक बाकी रह गया, और यहाँ एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया. सो डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल आउट एंड द लेफ्ट बिहाइंड टर्म इज़ 2 डेल्टा x प्लस 4x. और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वी आर गोइंग टू डू लास्ट स्टेप बाय इंसर्टिंग लिमिट. नाउ इंसर्ट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x एज इट इज़. जहाँ जहाँ डेल्टा x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 0 पुट कर दें. तो ये सिंपली हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे डेल्टा x है तो ये 0 हो जाएगा और हमारा आंसर सिर्फ 4x होगा. सो इट मीन्स कि आपका जो आंसर है, और इसको बेटा हम क्या लिख सकते थे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y और डेल्टा x, दिस कैन बी रिटन एज dy और dx. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर एंड enclose your answer in a bracket. This is your final answer.
Now I am going to solve last part of question number 1 as a practice by using binomial expansion. This is binomial expansion. ज़रूरी नहीं है यहाँ पर a ही हो, b भी हो, 1 + x भी हो सकता है, कोई भी टर्म्स हों, लेकिन आपने फार्मूला यही फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. a + b होल पावर n, a रेज़ टू पावर n + n, a रेज़ टू पावर n - b + n × n - 1 और 2 फैक्टोरियल a n - 2. और आप लोगों ने जो याद किया होगा वो मुझे भी पता है, वो होगा 1 + x रेज़ टू पावर n. तो उसको हम याद कर लेते हैं, 1 + nx + n × n - 1. इतना आपने तो दोनों ठीक है, जो मर्ज़ी आप याद रखें, ठीक है. जस्ट ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये n क्या है, ये पावर है. तो स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर प्लस n क्या है, पावर है, और a के ऊपर जो पावर टोटल थी उसमें से एक माइनस कर देना है. और b वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में सिंगल पावर के साथ आएगी, और फिर इसकी पावर जो है बढ़ती जाएगी. यहाँ b की पावर 1 है, आगे देखें b की पावर 2 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल था, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, आगे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ऐसे हम राइट करेंगे. x रेज़ टू पावर 40. If you are able to solve this part, then you can easily solve x raised to power -100, and that is the last part of question number 1, and this one is second last. So now what is first step? In first step put y is equal to x raised to power 40. Second step add delta function on left hand side and right hand side. Y plus delta y is equal to x plus delta x whole power as it is 40. Now change the side of y. So on left hand side only left behind delta y. Delta y is equal to x plus delta x whole power 40 minus y. ये y लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर आए हैं, इसलिए ये माइनस हो गया है. पहले ये क्या था, प्लस था, ठीक है. अब हमने क्या करना है, y की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. वो क्या है, दैट इज़ x रेज़ टू पावर 40. ये पुट कर दी हमने वैल्यू. और अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 40, इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करना है. सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है. डेल्टा वाई एज इट इज़ x रेज़ टू पावर 40. यही था ना कि फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट जो आपके पास x डेल्टा x, यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है, x है और डेल्टा x है. x जो है आपके पास उसकी पावर में n, यानी टोटल पावर जो भी होगी, तो x रेज़ पर 40 ये राइट कर दिया. उसके बाद n क्या है, हमारे पास 40 है, तो 40 लिखा स्टार्ट में. फिर क्या है a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है x, उसमें क्या लिखना है, 40 में से एक माइनस करके राइट करना है, n - 1 x रेज़ टू पावर 39, ठीक है. एंड डेल्टा x क्या है, b टर्म है, उसको सिंगल पावर के साथ राइट करेंगे, डेल्टा x यहाँ पर प्लस. फिर उसके बाद n × n - 1, n क्या है यहाँ पर 40 पावर है, और n - 1 यानी 40 में से एक माइनस करके राइट करेंगे, तो 40 में से 1 माइनस किया 39, डायरेक्ट राइट कर सकते हैं आप लोग. n × n - 1 x रेज़ टू पावर 38, x रेज़ टू पावर n - 2, a रेज़ टू पावर n - 2, यानी ये जो आपको 40 गिवन है इसमें से 2 माइनस करेंगे 38 बचता है. डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन. लास्ट टर्म जो होती है वो डेल्टा एक्स सेकेंड टर्म, और टोटल पावर के साथ लिखते हैं -x40. ये हमारा सेकंड, ये हमारी ये वाली टर्म है, y की टर्म, ये एज इट इज़ ये बाहर लिखी हुई है. हमने बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल सीरीज़ जो है वो अप्लाई हम कर चुके हैं. अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते थे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स. सो आफ्टर डिवाइडिंग डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स. 40 x रेज़ पर 39 प्लस 40 39 x रेज़ पर 38 डेल्टा एक्स और 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर 39. नाउ अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स नज़र आ रहा है वहाँ हम 0 पुट करते जाएंगे. 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद तो देखें यहाँ पे 0 पुट हो गया, ये टर्म भी ख़त्म हो गई. यहाँ पे 0 पुट हो गया, ये टर्म भी हमारी जो है वो ख़त्म हो गई. तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास बचती है 40 x रेज़ टू पावर 39. और ये जो 2 फैक्टोरियल है ना यहाँ पर, ये इस 40 के नीचे नहीं है, ये जस्ट यहाँ तक है, ठीक है. यहाँ तक डेल्टा ये कटिंग हो गई, तो आपके पास ये सारी टर्म एज इट इज़ आप राइट करेंगे यहाँ पर. एंड फाइनली
limit delta x tend to 0, delta y over delta x, it can be written as dy over dx, that is equal to 40 x raised to power 39. और क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड नाउ. वन थिंग मोर इज़ दैट, इस क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करने के लिए जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ तो आपने साथ साथ इसको अपने रजिस्टर पर कॉपी पर नोट करना है, ताकि आप लास्ट स्टेप जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें. देखें, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ. इस स्टेप को गौर से देखें. इस स्टेप को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलता है यहाँ पर कि ब्रैकेट्स को अगर हम रिमूव कर दें, x रेज़ टू पावर 40 प्लस है और ये जो लास्ट में x रेज़ टू 40 है ये माइनस है, ये कटिंग हो जाएंगे आपस में, कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी. ठीक, तो यही चीज़ होगी जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि x40 लास्ट वाला कहाँ चला गया. ये कैंसिलेशन हो जाएगी, बाकी टर्म की डिनोमिनेटर डेल्टा x आ जाएगा और आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. नाउ इट्स योर होमवर्क. Do complete homework practice at least one time and do all parts of question number 1 as a homework on your neat and clean homework register. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.